कैप्टन से नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू का न्यूज 18 पर धमाकेदार इंटरव्यू। सिद्धू ने कैप्टन को दी खुली चुनौती, कहा मेरे लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद करके दिखाएं। नवजोत सिंह ने कैप्टन और बादल की मिली भगत के लगाए आरोप, कहा पंजाब पर कब्जा कर बैठे हैं दो परिवार, एक दूसरे को सत्ता करते रहते हैं हैंडओवर। कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात, 3 सदस्यीय कमेटी के सामने भी होंगे पेश। 2022 में सिख चेहरे पर दांव लगाएगी आम आदमी पार्टी, अमृतसर में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सिख चेहरे को बनाएंगे सीएम फेस, कई चेहरों पर चल रहा मंथन। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कुंवर विजय प्रताप, बेअदबी मामले में कैप्टन सरकार पर उठाए सवाल, बोले जब गुनहगारों को सजा देने का वक्त आए तो जांच खारिज करवा दी। अंबाला में पुलिस से भिड़े किसान, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का करने पहुंचे थे विरोध, दादरी में बबीता फोगाट को दिखाए काले झंडे। पलवल में ढाबे की रसोई की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने 10,000 रुपए भी लूटे, ढाबा मालिक से फोन पर मांगी 50,000 रुपए की रंगदारी। योग दिवस पर भारतीय सेना का शौर्य, लद्दाख से लेकर गलवान घाटी तक दिखा जोश, 14,000 फीट की ऊंचाई पर फौजियों का दमखम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। कैप्टन से नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू का न्यूज 18 पर धमाकेदार इंटरव्यू हुआ। करीब 40 मिनट के इस इंटरव्यू में सिद्धू ने कैप्टन से लेकर बादल परिवार तक को घेरा। सिद्धू ने कैप्टन को खुली चुनौती दी और कहा कि कैप्टन मेरे लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद करके दिखाएं। सिद्धू ने बादल और कैप्टन का बिना नाम लिए कहा कि पंजाब में सिर्फ 2 परिवारों का कब्जा है, दोनों एक दूसरे को सत्ता का हैंडओवर देते रहते हैं। ਇਹ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? 786 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ 786 ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ। ਕੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਸੁਣਨਾ? ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਨਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ? ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ? ਇਜ਼ ਹੀ ਦ ਕਾਂਗਰਸ? ਨੋ। ਇੱਕੋ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਰੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਤੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਭ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਹੁਣ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਟਕਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਚੁਣੇ, MP ਚੁਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਐਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਿਰੰਤਰ 5-6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਤੇ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਸਿਸਟਮ? ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੂੜਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। कमबख्ती की निशानी सूख गया कुएं का पानी। वो कहते ना कमानी ना पहिया,
ਤੇ ਗੱਡੀ ਜੋਤੇ ਮੇਰਾ ਭਈਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सिख चेहरे पर दांव लगाएगी। ऐलान पंजाब दौरे पर अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का सीएम फेस सिख चेहरा ही होगा। इसके लिए कई चेहरों पर मंथन चल रहा है। पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही रहेगा। और इस मौके पर पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होते ही कुंवर विजय प्रताप ने बेअदबी मामले में कैप्टन सरकार पर सवाल उठाए। कुंवर ने कहा कि जब गुनहगारों को सजा देने का वक्त आया तो जांच खारिज करवा दी गई। बता दें कि कुंवर विजय प्रताप बेअदबी मामले की जांच के लिए गठित पहली एसआईटी के सदस्य थे, जिसकी रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ मतलब जनता का तुसी देखोगे तीसरी बार उन्होंने जिताया तो आज भी वो सारे तारीफ करते हैं। वो मेहनत का नतीजा है, वो विजन का एक नतीजा। अगली बड़ी खबर अंबाला से। पुलिस से किसान भिड़े हैं। यहां पर कंवरपाल गुर्जर का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे थे। पंचायत भवन में शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, बैठक से पहले ही किसान विरोध करने पहुंच गए। कंवरपाल गुर्जर ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। लगातार किसान बीजेपी नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। अंबाला की तस्वीर जहां किसान पुलिस से भिड़ गए। कंवरपाल गुर्जर का ये किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे। पंचायत भवन में शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम था, कष्ट निवारण समिति की बैठक थी। बैठक से पहले ही बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे, नारेबाजी करने लगे। कंवरपाल गुर्जर ने हंगामा होता देखकर अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को यहाँ आना था, हमें कल ही पता लग गया था। हमने कल भी इसकी वीडियो डालती थी। हम विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। हम पूरे हरियाणा में हमारा ऐलान है कि जहाँ भी बीजेपी का कोई भी आएगा उसका पूरा विरोध करेंगे। जैसे कल पंचकुला में सीएम साहब ने आना था और उनका जहाज़ बैरिकेड नहीं उतरने दिया, हेलीपैड को किसान घेर के बैठ गए। कुछ किसान हमारे गिरफ्तार भी है, उनको भी रात को छोड़ना पड़ा और प्रशासन ने माफ़ी मांगी। बैरिकेडिंग की थी, हम तो खड़े थे शांति प्रिय। एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस को तो कोई किसी का भी कानून नहीं बनता रोकने के लिए। हमने एम्बुलेंस निकालने के लिए बैरिकेडर को उठाना चाहा तो पुलिस ने हाथापाई भी करी, डंडे भी मारे जिसको लगे, कईयों किसानों को लगे। तो हमने बैरिकेडर एम्बुलेंस के लिए तोड़ना पड़ा और इतनी दूर बैरिकेडर लगा दिए। हमें ये भी नहीं पता लगता भी कब गुर्जर आया ना आया, तो विरोध कैसे करेंगे हम।
उधर योग दिवस के मौके पर एक बार फिर से बबीता फोगाट का भी विरोध हुआ। किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। दादरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां बीजेपी नेता बबीता फोगाट पहुंची, लेकिन किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने योग दिवस मनाने के लिए भाजपा जजपा नेताओं को गांवों में घुसने से रोकने की बात कही थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जैसे किसान काले झंडों के साथ कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनको बीच रास्ते रोक दिया। इसके बाद किसानों ने बबीता के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। ये योग दिवस का प्रोग्राम है। योग दिवस का प्रोग्राम था तो योग हमारे देश की धरोहर है, योग दिवस मनाना चाहिए। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भी प्रशासन एसपी साहब है, डीसी साहब है, इनके द्वारा योग दिवस मना लेना चाहिए। इन नेताओं को क्यों बुलाते हैं? तो भाई ये नेता आते हैं तो बीजेपी और जेजेपी के तमाम लीडरों का बहिष्कार है, आगे भी जारी रहेगा जब तक आंदोलन चलेगा। खबर पलवल से, जहां नेशनल हाईवे 19 पर ढाबा मालिक को ठिकाने लगाने आए बदमाशों ने रसोइये की गोली मारकर हत्या कर दी और ढाबे के गल्ले से 10,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। हत्या और लूट के बाद आरोपी ने ढाबा मालिक से फोन पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी और ना देने पर इसी तरह जान से मारने की धमकी दी। मृतक के रिश्तेदार की शिकायत पर 4 नामजद बदमाशों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सो रहे थे, एक आध बंदा रह रहा था स्टाफ का खाने के लिए, तो उसका ही खाना वाना बना रहे थे। 4 बंदे आए, 2 बंदे वहीं रह गए बाइक पे, 2 बंदे यहाँ आए, एक बंदा यहाँ उधर थोड़ा रहा, एक थोड़ा परे को था। उसने कि खाना है, हमने कहा खाना वाना तो खत्म हो गया, खाना वाना नहीं कुछ। हमने कहा अच्छा खाना ना खिला रहा, गोली मार दूंगा। हमने सोची सब ऐसे ही बोलते, कोई मार थोड़ी देता है गोली। अब उसने हमने कि भाई ऐसे कहते गोली मारते, खाना है नहीं, बंद हो गया होटल। 13 दिन से निकाल लिखा लगा बात। इसमें 4 नाम हैं, श्याम वगैरह पलवल के रहने वाले हैं सारे के सारे, और आपराधिक रिकॉर्ड है इन लड़कों का पहले भी। जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करेंगे और सफदरजंग के अंदर उस मरने वाले से प्रश्न। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो गया। कार सवार हिमाचल से दिल्ली की तरफ जा रहे थे कि अचानक कार का टायर फट गया और ये हादसा हो गया। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। गनीमत ये रही कि पूरा परिवार बाल बाल बच गया। आसपास के लोगों की मदद से कार में सवार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कार पल्ली साइड से आ रही थी। हाँ। पता नहीं इसका पंचर होया, पता नहीं बैलेंस बिगड़ गया। हाँ। ये आगे यहाँ पोस्टर में टकराई। अच्छा, इसमें टकराई। कौन कौन था? फैमिली थी पूरी। अभी ठीक है, बच गए हैं अभी? हाँ, सब हॉस्पिटल ले गए हैं। ठीक है, सब हॉस्पिटल में हो रही है, चले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर है। इनकी फैमिली पूरी थी, 2 बच्चे थे छोटे। हाँ हाँ। एक बुजुर्ग थे। हाँ हाँ। बाकी ठीक है सब? बाकी सब ठीक है। उधर ऊना में रोटरी चौक पर भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। कार की टक्कर से बिजली का पोल टूट गया और बिजली की तार सड़क के बीचों बीच लटक गई। गनीमत रही कि पोल से टकराने के बावजूद कार चालक करंट की चपेट में आने से बच गया। हालांकि हादसे में कार चालक घायल जरूर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद और विधायकों की राहुल गांधी से मुलाकात। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। राजकुमार वेरका भी राहुल गांधी के निवास पर पहुंचे हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझाने के लिए आलाकमान तमाम कोशिशें कर रहा है। बड़ी खबर इसी बीच दिल्ली से, जहां कांग्रेस सांसद और विधायकों की राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला राहुल गांधी से मिले हैं और राजकुमार वेरका भी राहुल गांधी के निवास पर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां कांग्रेस सांसद और विधायकों की राहुल गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। राजकुमार वेरका भी राहुल गांधी के निवास स्थान पर है और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली पहुंच गए हैं।
और खबरें कि कल वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस की कलह को दूर करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। 3 सदस्यीय कमेटी के सामने भी एक कर सभी नेता पेश हुए थे, अपनी शिकायतें रखी थी। और उसके बाद बड़ी खबर दिल्ली से ये कि कांग्रेस सांसद और विधायक भी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। राजकुमार वेरका भी राहुल गांधी के निवास पर पहुंचे हैं। आलाकमान चाहता है कि जल्द से जल्द पंजाब कांग्रेस की कलह को दूर कर लिया जाए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। रवि, खबर मिल रही है कि दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस सांसद और विधायक पहुंचे हैं पंजाब से, क्या और जानकारी? बिल्कुल सुदेश, देखिए बता देना चाहूंगा आपको कि राहुल गांधी के निवास पर अभी तकरीबन 5 बजे सांसद गुरजीत औजला पहुंचे हैं और उनसे 2 मिनट पहले ही राजकुमार वेरका पहुंचे हैं। तो और अभी जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, कुछ और विधायक भी राहुल गांधी से मुलाकात करने राहुल गांधी के निवास पर पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए, पंजाब राजनीतिक दृष्टिकोण से ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब में जो आंतरिक कलह चल रही थी उसको सुलझाने के लिए यहाँ पे 3 सदस्य की कमेटी बनाई गई, काफी बैठकें हुई और उसके बाद ये मुलाकात कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट जो पद है वो मिल सकता है इन लोगों को। जैसे राजकुमार वेरका को एक नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बात करें गुरजीत औजला को भी एक नई जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। तमाम अटकलों पर आज कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा। ये मुलाकात के बाद जब गुरजीत औजला बाहर निकलेंगे, मीडिया से क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कपूरथला में अभी वो ठहरे हुए हैं, वो भी मुलाकात कल कर सकते हैं सोनिया गांधी से। तो तमाम देखा जाए तो ये लगातार मुलाकात का सिलसिला चालू है और देखना ये होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद राजकुमार वेरका मीडिया से जब रूबरू होते हैं तो क्या मुद्दे वो डिस्कस उन्होंने अंदर किया है, उसकी क्या जानकारी देते हैं, देखने वाली बात होगी। मगर देखा जाए तो ये तमाम मुलाकातों का ये जो सिलसिला है वो दिल्ली में अब शुरू हो चुका है। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी मेरे सहयोगी ने दी कि कांग्रेस सांसद और विधायक राहुल गांधी से मुलाकात के लिए पहुंचे। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, उनसे ठीक पहले राजकुमार वेरका भी राहुल गांधी के निवास पर पहुंचे हैं। और जानकारी अभी तक ये मिल पा रही कि कोई बड़ी जिम्मेदारी इन 2 चेहरों को दी जा सकती है। आंतरिक कलह पंजाब कांग्रेस की दूर करने की कोशिशें आलाकमान कर रहा है। और कल राहुल गांधी के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में जानकारी कि कल वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।